देश में नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें देश में नहीं बढ़ेंगी। तो देश में नहीं बढ़ेंगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम देश में नहीं बढ़ेंगे। बड़ा अपडेट इस संबंध में सामने आ रहा है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों का भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें भारत में स्थिर रहेंगी। ये बड़ी जानकारी और राहत भरी खबर देश के लोगों के लिए है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों का भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा। ये राहत भरी खबर देशवासियों के लिए है। और पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर में की जाएगी। ये बड़ी खबर देशवासियों को इंडिया न्यूज बता रहा है। Dollars, which came down subsequently to $75. So the crude inventory that they're carrying is at $75 on an average per barrel. So, but if your question is going forward from here, if the price remains at $60 a barrel as it is today or thereabouts, and I'm not going into the Indian basket or Brent, etc., I'm not going into that, then can you legitimately expect prices of petrol and diesel to be moderated by the oil marketing companies in keeping with the global price? To which my answer would be yes. In a deregulated sector, you can expect them to accordingly adjust the market retail price. But that's not the only reason why I've called you here. I have requested you to come because we have also had to look at some other areas for decision making. And I want to draw your attention. We'll be giving you a note. The note I'm using, I'm also going to share with you, both electronic copy and otherwise. You know, we have come a long way on LPG. There was a time when an LPG cylinder was an item which was rare, which you had to stand in a queue for, etc. When the Honorable Prime Minister assumed office, by today it's 60 or thereabout, 61 or 62. Yeah. But please let me complete, then you ask me whatever question you want. So there was a time when, you know, you had to stand in a queue to get a cylinder, you had to use influence. Today, you can actually SMS, you can also do what we call IVRS, voice call. You can send a WhatsApp message and they will deliver a cylinder to you at your residence. The total coverage of LPG for the population, it stood at around 14 crores or 140 million in 2014. That has gone up to around 33 crores or 330 million. So if you go by the yardstick that you have one cylinder per connection per household, then the entire country is covered. In fact, I would say there's more than 100% LPG coverage. In addition to that, we have an Ujjwala scheme. The Ujjwala scheme was introduced in 2016, and the Ujjwala scheme also has something like 100 million plus or 10 crore plus beneficiaries. And the advantage of the Ujjwala scheme and overall LPG connection is that today our brothers and sisters, more our sisters, can have freedom from firewood, coal, cow dung, cakes, etc., all the traditional cooking fuels, which is not the case even in some advanced countries, where even though the countries develop, the rural countries. हमारे साथ साहिल रुखाया हमारे इस नम्रता लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर।
साहिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हरदीप सिंह पुरी की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से जो पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन कुछ देर पहले जारी किया गया था, जिसमें पेट्रोल डीजल पर 2-2 रुपए एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई थी, जिसको लेकर लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी खबरें चली और उसके बाद सरकार की ओर से एक ट्वीट जारी किया गया। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि इसका असर जो है वो जनता पर नहीं पड़ने वाला। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से ट्वीट किया गया है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उत्पादन शुल्क की दरों में वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि जो है वो नहीं होगी। ऐसे में आम लोगों पर इसका कोई असर जो है वो नहीं रहने वाला। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले ये खबर आई थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 2-2 रुपए बढ़ोतरी कर दी गई है, तो ऐसे में पेट्रोल पंपों पर भी लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखने को मिल गई थी। कुछ देर पहले यहाँ काफी भीड़ जो है वो लोगों की देखी जा सकती थी। फिलहाल अभी भी भीड़ जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी कि आज रात से 2-2 रुपए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। तो ऐसे में लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले और पेट्रोल डीजल जो है वो अपने वाहनों में यहाँ डलवाने के लिए यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। अब जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसमें क्लैरिटी कर दी गई है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल में जो है कीमतें नहीं बढ़ी है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ाई गई है, 2-2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल की रेट रिटेल की कीमत पर इसका कोई असर रहने वाला नहीं है। यानी कि जो आम लोग हैं अपने वाहनों में जो पेट्रोल डीजल डलवाते हैं उन पर कोई असर जो है इसका नहीं देखने को मिलेगा। इस बात की क्लैरिटी पेट्रोल मंत्रालय की ओर से भी एक ट्वीट जारी करके कह दिया गया है। और साथ ही साथ पेट्रोलियम मंत्री भी जो है इस मामले में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी ओर से भी एक क्लैरिटी जो है वो कर दी गई है। तो ऐसे में एक राहत जो है वो लोगों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से खबर आई थी कि 2-2 रुपए एक्साइज ड्यूटी जो है बढ़ाने से कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा और उसका भार जो है वो कहीं ना कहीं तमाम वर्गों पर पड़ेगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट पर हो, किसानों पर भी हो। तो ऐसे में अब सरकार की ओर से इस मामले में क्लैरिटी जो है वो पराग कर दी गई है। कुल मिलाकर ये माने साहिल की एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ी है और जिसको लेकर लोगों में लगातार इस बात की हलचल थी कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी आम लोगों के लिए बढ़ जाएंगे, लेकिन अब ये स्पष्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर दिया जा रहा है पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से कि आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो रिटेल के प्राइस हैं वो उतने ही रहेंगे जो कि अभी हैं। बिल्कुल, जिस तरीके का ट्वीट जो है वो जारी किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इसका जो है आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल पर सरकार की ओर से 2 रुपए प्रति एक्साइज जो ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है और इससे पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो नहीं बढ़ेंगे। इससे कच्चे तेल की घटी कीमतों में एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि आम आदमी पर इसका कोई भार जो है वो नहीं पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतों में इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जब पहले खबर आई थी कि 2-2 रुपए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, पहले आम जो लोग थे जो रूटीन का अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल डलवाते थे, मध्य वर्ग के लोग थे जिन्हें काम पर जाना होता था अपने वाहनों को लेकर, उनके लिए शुरुआती तौर में झटका था। लेकिन जब ये खबर आई कि इससे कोई असर जो है वो लोगों पर नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने राहत की सांस ली। फिर से मैं आपको पेट्रोल पंप की तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं। अभी भी पेट्रोल पंप पर लोगों की काफी संख्या देखी जा सकती है। काफी वाहन जो है यहाँ खड़े हैं, लोग जो है वो पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। अब इन्हें पता लग गया है जिस तरीके से पेट्रोलियम मंत्री है उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इससे आम लोगों पर कोई खासा असर जो है वो नहीं दिखने वाला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका साहिल, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे संवाददाता साहिल रुखाया को आप सुन रहे थे। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, ये स्पष्ट हो गया है। जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की खबरें सामने आई थी और उससे लोगों के